Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to do yet another pick a card reading. And today's reading's topic is June predictions, June 2026 predictions, or just June predictions. I mean, you may come across this reading uh, in the next year or in any upcoming years as well. So these predictions will be for the month of June whenever you see it around. So let's see that. But before doing that, I would like to mention uh, that there are a lot of people who are watching my video and aren't subscribing. So I am setting this intention that only those people who are subscribing to my channel will be able to actually get the energy that I am channeling here, which is obviously authentic. So I would really appreciate if you could uh, subscribe to the channel to actually receive that energy, so that an energy exchange could happen here. So I would like to say that. And yeah, now I shall see you at your reading. So hello, pile number 3, welcome back to my YouTube channel and to your reading. So let's see what is coming for you in the month of June 2026, or in whichever year you're watching. We're doing predictions for the month of June. So let's see that. But before doing that, I would like to mention that I do take personal readings. So if you would want a personal reading from me, you can connect to me through my email ID, which is given in the description box below. Yeah. So let's see, what do we have for you in the month of June. So we will do aspect wise here. So firstly we will see what is coming in your career in the month of June. Then we would go to your love life in the month of June, then your personal life, and then we will take cards from this deck to see what spiritually is influencing your life in the month of June. Yeah. So let's do that. Okay, now for your career, what is happening in pile number 3's career in June? Okay, this one is coming out in my hand. We'll take that. Pile number 3's career in June. Pile number 3's career in June. Okay. Pile number 3's career in June. Pile number 3's career in June. Pile number 3's career in June. Pile number 3's career in. Okay. I think these are a lot of cards, so I will just take this one because I think this came out first. Pile number 3's career in June. Okay, we'll take this one. Yeah. That is for your career, these cards. I will show you all of the cards once I get all of them for all the aspects. Okay. So we have the Page of Swords from the bottom of the deck. Now, pile number 3 is love life in June. Pile number 3 is love life in June. Pile number 3 is love life in the month of June. Pile number 3 is love life in the month of June. Okay. Okay. एक और बार हम shuffle करेंगे. Pile number 3 is love life in the month of June. Pile number 3 is love life in the month of June. Okay. Okay, we'll take all of these, yeah. Now, the High Priestess from the bottom of the deck. Now,
Pile number 3 is personal life in the month of June. Pile number 3 is personal life in the month of June. Okay, I think that is all for personal life. Now, oh, I'm sorry. It gets a little bit messy at times कि इतने cards हम use करते तो थोड़ा सा. Now let's see what is happening spiritually in the life of pile number 3. Like what spiritually is influencing pile number 3's life, entire life. What is influencing pile number 3's entire life spiritually? You can hear, I don't know if you could hear the thunder, but like there are thunderstorms outside and I'm recording a video that here pile number 3's okay. What is happening spiritually for pile number 3? I mean, what spiritually is influencing pile number 3's life? What spiritually is influencing pile number 3's life? Okay. I think that is all. Okay. So you have to think it through from the bottom of the deck. You will see these cards later. I will just उनको उल्टा रख दिया मैंने अभी के लिए. So पहले हम देखेंगे कि करियर में क्या हो रहा है आपके. We have the उल्टा है ऐसे. We have the 4 of Wands firstly. Then we have the Ace of Wands. Then we have the King of Wands again. ये pile number 2 में भी आया था. Then we have the 7 of Swords. Then we have the 5 of Pentacles. Then we have the Strength. And then we have the Page of Swords. Now आपकी love life के लिए क्या है वो देखते हैं. We have the Ace of Pentacles. Okay. Then we have the Page of Swords. Then we have the Tower. मैं भी थोड़ा टावर अचानक से आ गया और कार्ड भी ये थोड़ा ऐसा ही होता है. मतलब ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडनेस को भी सिग्निफाई करता था. It's like yeah. Then we have the Hermit. Then we have the Page of Cups. The Temperance. The Sun. Oh my God. क्या रीडिंग है यार. Sorry. The 7 of Swords again. 7 of Swords थोड़ा बार बार आ रहे हैं यहाँ पे. The Knight of Cups. Pile number 1 में भी आया था. And the High Priestess from the bottom of the deck. Such a beautiful card. Yeah. Now your personal life. We have the 2 of Swords. The Ace of Swords. The 10 of Pentacles. The 3 of Swords. I think this is reversed here because ये थोड़ा reverse में भी आया. मुझे reverse ही लग रहा है. The Queen of Swords. Upright है ये. The Hanged Man. Upright. The Queen of Pentacles and the Queen of Cups. Oh wow, Queen of Pentacles, Queen of Cups दोनों pile 1 में आए थे. Anyways, but मुझे यहाँ पे लगता है कुछ लोग या तो यहाँ पे pile 1 से आए हैं या आपको pile 1 में भी कॉलिंग आई है कि मुझे वो भी देखना चाहिए. तो अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ उसे भी देखिए. आपके लिए कुछ मैसेज वहाँ पे हो सकता है. मुझे लगता है पूरी तरीके से तो आपसे दोनों रेजोनेट नहीं करेंगे बट आई थिंक सम पार्ट्स ऑफ pile 1 कैन रेजोनेट विथ यू. जो लोग भी pile 1 देखना चाह रहे हैं उन लोग के लिए ये. पहले अगर मैं आपकी करियर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 7 of Swords थोड़ा स्टैंड आउट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे कार्ड. अब उसका रीज़न अगर मैं बताऊँ ऐसा क्यों है तो यहाँ पर 2 डिफरेंट डेक से 7 of Swords बार बार आया. एंड ये मुझे ये एक चीज़ जो बताता है कि यहाँ पे इस मंथ के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू और यू नो जो एक चीज़ आपको अपने दिमाग से बाहर निकालनी है इस मंथ के लिए वो ये है कि listen to your intuition before trusting anyone about कुछ sensitive topics या कुछ sensitive चीज़ें जो आप you know जिसके लिए भी आप कोई person से interact कर रहे हैं.
क्योंकि यहाँ पे मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं धोखा बताते हैं, कहीं ना कहीं यू नो बिट्रियल बताता है। तो यहाँ पे लाइक मुझे फ्रॉड टाइप ऐसी एनर्जी आ रही। मैं नहीं कह रही आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, बट ये है कि आपको यहाँ पर सोच समझ के अपनी इंट्यूशन की सुननी है बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन विथ एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, एनी बिफोर डिस्कसिंग एनी सेंसिटिव टॉपिक विथ समवन। ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जनरल मुझे आ रहा है। करियर को लेके भी एक चीज़ है और आपके लव लाइफ को लेके भी एक चीज़ है। या मैं ये कहूँगी पहले तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स से आपकी रीडिंग बिगिन होती है, पाइल नंबर 3। एंड यहाँ से मुझे ये लगता है कि आई थिंक कुछ ना कुछ शायद आपने अकम्प्लिश किया है इन योर करियर इन द वेरी रिसेंट पास्ट। और या मुझे लगता है कि कुछ आप जून में भी अकम्प्लिश करेंगे यहाँ पे या करने वाले हैं। कोई यहाँ पर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, या मे बी कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने करियर में, तो वहाँ पर आपको कुछ अच्छा होता हुआ कुछ मिल सकता है वैसा। देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स हियर। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे आई थिंक करियर वाइज आपका अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ सकता है। क्योंकि जब मैंने जो मैं कह रही हूँ यहाँ पे एक सक्सेस वाली एक एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो 4 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सेलिब्रेशन दिखाता है। बट ये मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसी एनर्जी दे रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं। देन एक और चीज़ जो मैं आपके करियर के लिए बोलना चाहूँगी कि मेक श्योर कि आप मेहनत कर रहे हैं। हार्ड वर्क, मतलब ऑलवेज स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क, बट यू आर नॉट टेकिंग शॉर्टकट्स इन योर स्मार्ट वर्क टू। मतलब जहाँ पर मेहनत की ज़रूरत है वहाँ मेहनत कीजिए। डोंट ट्राई टू मतलब ऐसे पतली गली से छोटी गली से निकलने का मतलब नहीं है। क्योंकि छोटे या बड़े रास्ते तो मैं नहीं कहूँगी, बट सही रास्ते पर ना जाकर तो सक्सेस कभी नहीं मिलती है। तो सही रास्ता आपको चूज़ करना है, चाहे वो लंबा हो चाहे वो कितना ही छोटा हो। ये चीज़ मैं कहूँगी। एंड यहाँ पे ये तो मुझे आपके करियर के लिए है। लव लाइफ को लेके मुझे लगता है यहाँ पर किसी की आई डोंट नो मे बी समवन कैन प्रपोज है और समथिंग, या किसी की इंगेजमेंट यहाँ पर फाइनल हो सकती है, या इंगेजमेंट भी हो सकती है ऑनेस्टली, या इंगेजमेंट भी हो सकती है यहाँ पे किसी की। लाइक आगे चीज़ें बढ़ सकती है फॉर समवन जो सोच रहे थे कि मतलब यहाँ पर डिसीजंस भी लिए जा सकते कि ओके हम शादी करेंगे या वी विल गेट इंगेज्ड, और द नेक्स्ट स्टेप अबाउट समथिंग इन द रिलेशनशिप ये हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ऑब्वियसली जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे लगता है वो लोग यहाँ पर मिल सकते हैं किसी से। यस, मिल तो सकते हैं। और मुझे उससे ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा एग्जैक्टली कि वो पर्सन कैसा होगा, वो क्या है। क्योंकि मुझे लगता है उसको लेके यहाँ पे आई फील आपके स्पिरिट गाइड्स वो रिवील नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे उसके अलावा कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे। ऐसे मैसेज है कि ओके यू कैन मीट समवन, बट व्हाट अबाउट दैट पर्सन, डू यू नो हिम, ऑल ऑफ दैट उसके बारे में मुझे नहीं बताने दे रहे हैं यहाँ पे। तो मैं वो नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता वो क्यों नहीं आ रहा है। सो ये एक चीज़ है फॉर योर लव लाइफ। नाउ कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में मुझे लग रहा है कि आपका माइंड थोड़ा ना ज़्यादा बोल सकता है जून के मंथ में। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार हमारा दिमाग शांत रहता है और हम आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। मुझे जून के मंथ में ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड थोड़ा सा ना, आपकी माइंड का चैटर थोड़ा ज़्यादा लाउड हो सकता है। आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा ही मतलब शांत नहीं हो पा रहा शायद आपका माइंड, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो अपने माइंड को थोड़ा शांत करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पॉजेज ले लीजिएगा।
जितनी भी हेक्टिक लाइफ चल रही हो, लाइक थोड़ा सा अपने माइंड को शांत करने के लिए चीज़ें थोड़ा सी कीजिएगा पर्सनल में, मतलब पर्सनली यहाँ पर। एंड एस ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है कि इट्स लाइक द मोमेंट आप अपने दिमाग को शांत करेंगे, यहाँ पर आप तक सॉल्यूशंस पहुँचने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के, या यहाँ पर आइडिया भी लग सकता है आपको, या तो कोई मतलब या यहाँ पे कुछ आइडिया लग सकता है। अब वो किस चीज़ को लेके आइडिया मुझे लग रहा है, और ऑनेस्टली किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है वो आइडिया। मे बी इट कैन बी एज मंडेन एज कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ का मे बी हाँ ये ओके नाउ आई गेट इट, ये कुछ ऐसी चीज़ को लेके आपको आइडिया लगेगा जिसको लेके आप बहुत टाइम से स्टक है कि यार, जैसे मतलब वो सिचुएशन क्या आती है, आपको समझ नहीं आता यार मैं क्या करूँ, इसके लिए क्या करूँ, आप ऐसे ही सोचते रहते हैं। तो उस चीज़ को लेके मुझे आपके दिमाग में आइडिया आता हुआ दिख रहा है जब आप अपने माइंड को शांत करते हैं तब। एंड आई फील उसकी वजह से आप थोड़ा सा यहाँ पर उसकी वजह से आप थोड़ा, मुझे लगता है कि थोड़ा कंट्रोल्ड अपने आप के अंदर फील करने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ओके आई हैव समथिंग इन मी, एंड मैं चीज़ें अपनी लाइफ के अपने लाइफ के रेल्म्स अपने हाथ में मैं लेके चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। लाइक आई हैव सम पावर विद इन मी, आई फील आप ऐसा सोचेंगे। एंड वो सही भी है, क्योंकि हम सबके अंदर वी ऑल ऑफ अस हैव दैट पावर कि हम कोई भी सिचुएशन से, कोई भी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, गेटिंग टू दैट सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। आई सी दैट। सो नाउ लेट्स सी स्पिरिचुअली आपके लिए क्या आ रहा है। एंड 15-15 एज आई सी दैट, सो दैट इज़ अ कॉन्फर्मेशन आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। सो लेट्स सी हमारे पास क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर। वाह, या स्टेप इनटू योर पावर, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। सो लाइटन अप is the first card here. Then we have think it through. Then we have go for it. Then we have know your worth. करियर को लेके मुझे एक और चीज़ कहनी है। करियर को लेके आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप ना मतलब आप अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट रहें। यहाँ पे कॉन्फिडेंट आई थिंक 2-3 बार मैंने ही बोल दिया शायद, बट कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बिकॉज आई फील यहाँ पर एक कहीं ना कहीं थीम जो आपके लिए स्पिरिचुअली भी निकल के आ रहा है और जो पर्सनली भी आपके लिए आया है आप ऑन अ सोल लेवल, वो भी यही है कि आप अपनी पावर जानेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपके करियर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। तो ये वाली एनर्जी जो मैंने कहा कि जब यू काम योर माइंड एंड देन यू गेट सर्टेन सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स, तो उस स्टेट में जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन द मंथ ऑफ जून, वेन एवर यू गेट टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि ये वाली चीज़ सिर्फ एक ही बार होगी। इट डिपेंड्स ऑन कि आप उसको कितनी बार आप कितनी बार खुद को उस स्टेट में ला पाते, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनल नंबर 3, so make sure that you are doing that to yourself, because on a soul level ये आपकी सोल के लिए भी अच्छा ही है ना, राइट? सो कर लेना ये। या सो देन वी हैव नो योर वर्थ एंड स्टेप इनटू योर पावर। वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। मैंने कार्ड भी नहीं देखा था ये, और ये चीज़ आई। एंड टेक इंस्पायर्ड एक्शन। यस, सो यहाँ पर स्पिरिचुअली मुझे लग रहा है आप मुझे लगता है स्पिरिचुअली आप अपना कोई तो प्लैनेट एक्टिव कर रहे हैं। मुझे ये सन दिखाई दे रहा है, सन प्लैनेट को ज़्यादा आप एक्टिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मार्स भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये मार्स भी हो सकता है। अपने मार्स प्लैनेट को एक्टिवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं।
यस, ये 2 प्लैनेट मुझे आ रहे जो आप अपने जिनकी आई थिंक आप उनको अच्छी तरीके से एक्टिव करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लाइफ में, बाय डूइंग दीज थिंग्स, बाय गोइंग इनटू दैट जोन. यस, एंड ऑब्वियसली बाय टेकिंग एक्शन, बिकॉज मार्स अगर एक्टिव हो रहा है तो विदाउट एक्शन तो नहीं होगा. It is important to be in that active energy to active your Mars energy. Yeah. Yes, and we have Aries also, so yes, why not. And yeah, so spiritually आपके लिए मुझे ये होता हुआ दिख रहा है. Yes. Anything else? एक मैं आपके लिए काली माँ ओरेकल से भी कार्ड लेना चाहूँगी. मैंने नहीं लिया है एक भी पाइल में, पर मुझे लगता है मुझे आपके लिए लेना है. काली माँ बहुत स्ट्रांगली रीडिंग्स में आ रही हैं. लाइक आई थिंक दिस इज़ माय 3rd रीडिंग जहाँ पर काली माँ, वैसे तो हर रीडिंग में हमेशा ही मेरे साथ होती है, बट यहाँ पर रीडिंग के बीच में आना, लाइक इट इज़ नॉट डिसाइडेड. मैंने ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं उनके कार्ड्स पुल करूँगी बिफोर डिसाइडिंग कि आज हम क्या करेंगे वैसा, बट इम्प्रॉम्प्टू है ये. What does Kalima would want? Pile number 3 is to know. Okay. Durga Kalika and Moksha of Kali. देवी माँ काली. कि मैं आपको कार्ड्स दिखाना चाहूँगी ये, बिकॉज ये बहुत इनकी इलस्ट्रेशंस आर एवरीथिंग. सो ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से है, देवी माँ काली. जस्ट लुक एट दैट कार्ड. एंड यहाँ पर हम सन की बात कर रहे थे, और यहाँ पर ये जो सन टाइप एनर्जी है, आई थिंक ये एक्लिप्स्ड और समथिंग, मैं यही अज्यूम करके चल रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज ये येलोइश लाइट है. तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं कंफर्म करता है जो मैं कह रही थी कि आपका सन कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक्टिवेट होता दिख रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक सन ईयर भी है. तो you have all reasons to be in your personality, and sun represent करता है आपकी personality जो outer world में कहीं ना कहीं देखी जाती है, that part. Then we have दुर्गा कालिका. I don't know आप एक चीज़ को observe कर पा रहे हैं या नहीं, but I sense यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी है. लाइक यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है. माय गॉड, ये काली माँ का कार्ड है मेरे लिए. स्ट्रेंथ, सॉरी हाथ में क्यों नहीं आ रहा. हाँ, स्ट्रेंथ कार्ड एक्चुअली सिग्निफाइज माँज एनर्जी फॉर मी. एंड यहाँ पर माँ आई हुई है रीडिंग के अंदर पहले से, ये मैंने नहीं देखा. देन वी हैव मोक्षा काली ऑल्सो. या काली काली शब्द सुनाई दे रहा है आपको हर कार्ड के अंदर. इसके हर कार्ड में काली नहीं लिखा है, बट आपके लिए तीनों वही कार्ड्स हैं जिनमें काली दुर्गा उनका मेंशन है, उनके नाम का मेंशन है. तो मैं यही कहूँगी कि आई थिंक काली माँ भी आपको यही बताना चाह रही है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपके लिए अपनी पावर में आना बहुत ज़रूरी है, अपने आप की वर्थ को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है. एंड जून में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आएंगे, और आपको इस वीडियो के थ्रू भी पूरे हक से आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप खुद के साथ शांति से बैठें और एक्सपीरियंस कीजिए योर पावर इन सम वे, एक्सपीरियंस योर ओन एनर्जी, एक्सपीरियंस योर ओन सेल्फ. जस्ट डोंट गेट लॉस्ट इन द वर्ल्ड. आई वुड से इफ यू वांट टू गेट लॉस्ट, प्लीज लॉस्ट इन योर प्लीज गेट लॉस्ट इन योर सेल्फ. आई डोंट नो क्या बोल रही हूँ मैं, बट ये यहाँ पर माँ भी थोड़ा बहुत कहना चाह रही है. मेरी वर्ड्स थोड़े से हिस्टेरिकल थे, बट ठीक है. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल दैट इज़ फॉर यू. पाइल नंबर 3 अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, सो सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे रेजोनेट करते हैं. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो एंड टू दिस चैनल इफ़ यू फील कॉल टू. एंड अगर आपको लगता है कि आपको मेरे कार्ड्स रीड करने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो ऑल्सो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए कमेंट्स में जाकर
प्लीज़ राइट कि आई क्लेम पाइल नंबर 3 और या जैसे भी आपको लिखना आता है. Please do that, and if you would share and subscribe to my YouTube channel, it would mean a lot to me, and I would appreciate that, because I feel it wouldn't take away much of anything from you guys. So in doing that, so again, if you feel called to do that, please do that, and I shall see you in my next reading. Until, take care, lots of love, bye.